السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 37 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بابا تیلے شاہ کہنے لگا، اب ہمیں شاہین بابا کے مزار پر جانا ہے۔ اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مزار کے اندر سے پوٹلی اٹھا لائے اور کل دوپہر کے نان پکوڑے نکال کر مجھے تھما دیے۔ لو کھا لو۔ میں نے ایک بار تو نان پکوڑوں کی طرف نظر ڈالی اور پھر بابا تیلے شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، کبھی کبھی روکھی سوکھی بھی کھا لیا کرو، پھر ساری عمر گھی کی چپڑی روٹیاں ہی کھانی ہیں تم نے، اس وقت تمہیں فقیروں کا یہ کھانا نہ ملے گا۔ ان کے کہنے پر میں نان پکوڑے کھانے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں کھانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، صرف ایک لقمہ ہی کھا سکا تھا۔ بابا، نہیں کھایا جاتا۔ میں جانتا ہوں تو ابھی یہ نہیں کھا سکے گا۔ بابا تیلے شاہ نے نان پکوڑے واپس لیے اور بڑے سکون سے ایک ایک نوالا کر کے کھا گئے۔ ہم دونوں الوداعی سلام کے بعد سیالکوٹ کی طرف چل دیے۔ بابا، اب بھی پیدل چلنا ہوگا؟ نہیں، آج تمہیں سواری ملے گی، بابا تیلے شاہ نے کہا۔ ہم دونوں قصبے سے باہر نکلے تو ہمیں ایک خالی ٹانگا مل گیا۔ ہم اس پر سوار ہو گئے تو کوچوان کچھ بولے بغیر ٹانگا لے کر چل دیا۔ جب ہم اورے پہنچے تو میری نظریں بے اختیار بابا بوٹے کے کھوکے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ نان پکوڑے کھانے والے لوگ ہوں گے، لیکن پھر احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، بابا تیلے شاہ نے انا للہ پڑھی اور میرے منہ سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ بابا تیلے شاہ نے کوچوان کو رکنے کا اشارہ کیا اور بابا بوٹے کے کھوکے کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہجوم کو چیر کر ہم آگے بڑھے تو بابا بوٹا بان کی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہرا سکون تھا مگر آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ بابا تیلے شاہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے انہیں بند کر دیا۔ اللہ مغفرت کرے بوٹے، تیری سنی گئی۔ وہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے بولے۔ ہم دونوں بابا بوٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد شاہین بابا کے مزار پہنچے تو اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دربار کے پاس ایک سفید بارش بزرگ دیکھ تقسیم کر رہے تھے۔ دیکھ کے اوپر سیاہ بھاری کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ایک لمبی کتار بڑے سکون سے ان سے نیاز لے رہی تھی۔ بابا تیلے شاہ نے مجھے کہا، تو بھی کتار میں لگ جا۔ میں نے ایک نظر کتار پر ڈالی۔ کم از کم 100 لوگ کھڑے تھے۔ اونچے ٹیلے پر مزار تھا اور اترائی تک کتار جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے دیکھ ختم ہو جائے گی، یوں کھڑا رہنے کا کیا فائدہ۔ میرا خیال پر لگا کر بابا تیلے شاہ تک جا پہنچا۔ وہ بولے، ہچتی، ہر وقت دلی کی گانٹ دیکھ کر اپنے دل کی وسطوں کو قید کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، صبر و تحمل سے کام لو۔ ان کے کہنے پر میں کتار میں لگ گیا۔ بارش بزرگ نے ہاتھ میں ایک تھالی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ کپڑا ذرا سا سرکاتے اور تھالی بھر کر چاولوں کی نیاز مندوں کو دیتے۔ میرے اندازے سے دیکھ کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے قریب جا پہنچا تھا اور اب میرے پیچھے لمبی کتار لگ چکی تھی، لیکن دیکھ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ میں پاس پہنچا تو میں نے اپنی جھولی پھیلا دی۔ بارش بزرگ نے تھالی چاولوں سے بھر کر میری جھولی میں ڈال دی۔ میں چلنے لگا تو وہ بولے، شہدے، ایک تھالی اور لے جا، اپنے بابا کو بھی کھلا دینا۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی، لیکن میں انہیں پہچان نہ سکا۔ میرے دماغ میں خود بد سی ہونے لگی کہ یہ آواز تو میں نے کئی بار سنی ہے، لیکن یہ شکل و صورت پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نیاز لے کر کونے میں بیٹھ گیا۔ بابا تیلے شاہ تو مزار کے اندر چلے گئے تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے میں چاول کھانے لگ گیا۔ اصولی طور پر تو یہ بد اخلاقی تھی، لیکن بھوک کی ننگی تلوار میرے سر پر ضربیں لگا رہی تھی، اس لیے میں شہدا اور نادیدہ بن کر نیاز لے کر چاول کھانا شروع ہو گیا۔ میری نظریں ابھی تک سفید بارش بزرگ پر تھیں۔ ان کا ہاتھ دیکھ کے اندر جاتا تھا اور بھری پلیٹ باہر آ جاتی تھی، مگر دیکھ تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس عجیب اسرار پر حیران تھا اور شاید میری حیرانی کبھی ختم بھی نہ ہوتی کہ ایک مجھول سا نوجوان لڑکتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ اس کی ناک بہہ رہی تھی، بال گندے تھے، تن پر صرف ایک چترا نما کپڑا تھا، اس سے بھی تعفن اٹھ رہا تھا۔ مجھے ناگوار تو لگا، لیکن کراہت کے باوجود میں کچھ نہ کہہ سکا۔ مزاح کی روشنیاں جل اٹھیں۔ وہ لڑکا میری جھولی میں ہاتھ ڈال کر چاول کھانے لگا۔ میرے اندر ناگوارے کی لہر اٹھی، لیکن میں نے ضبط کیا اور سارے چاول اس کے سامنے کر دیے۔ لڑکا بھوکوں کی طرح چاولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چاولوں کا ایک دانہ بھی نہ چھوڑا تھا۔ جب کھا چکا تو میری طرف دیکھ کر ہنس دیا۔
मेरे चेहरे पर अंदर की नागवारी रेंग कर बाहर निकलती नजर आ रही थी। वो बोला, भैया सवाद आया है। उसकी बात सुनते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। गाजी तुम? हाँ मैम। और वो बाबा जी सरकार? उसने देख वाले बारिश बुजुर्ग की तरफ इशारा किया तो उस लम्हा उन्होंने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं इस अजीब इत्तेफाक पे अभी तक हैरान हो रहा था कि बाबा जी सरकार ने मजहूल लड़के के रूप में गाजी को आवाज दी तो वो भुदकता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया और इनके इशारे पर देख को यूं उठाकर एक तरफ चल दिया जैसे वो देख ना हो प्याली हो। मैं झोली झाड़ता हुआ बाबा जी की तरफ बढ़ा तो उन्होंने हाथ से उधर ही मुझे रुक जाने का इशारा किया। बाबा जी का ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं हैरान था कि इन्होंने मुझे करीब आने से क्यों रोका है। मैं गोमगो की कैफियत में मुब्तला था कि क्या करूं, बाबा जी के करीब नहीं जा सकता था। इसी असना में गाजी देख रख कर आ गया। बाबा जी ने मुझे पास आने से मना कर दिया है। मैंने शिकवे के अंदाज में गाजी से कहा। इसकी वजह है, गाजी ने कहा। क्या वजह हो सकती है? मैंने दरियाफ्त किया। आज सरकार के साथ एक और मेहमान हस्ती आई है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम इनके करीब जाओ और कोई बात करो। कौन सी हस्ती इनके साथ आई है? मैंने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। बता दूंगा, लेकिन पहले एक वादा करो। वादा? मैंने सोचे समझे बगैर कह दिया। उधर तुम्हारे शहर में कुल्फियों की एक बड़ी मशहूर दुकान है, मुझे कुल्फियां ला दो, फिर तुम्हें बता दूंगा। गाजी की फरमाइश सुनकर मैंने बेइख्तियार कहका लगाया। बस इतनी सी बात थी। ये कहकर मैंने जेब से पैसे निकालकर इसे थमा दिए। ये लो और मौज उड़ाओ। भैया मैं फकीर तो नहीं हूँ, खुद लाकर दो ना। छोड़ यार, शक्ल से तो आज फकीर ही लग रहा है। मैंने इसे छेड़ा और कहा, वैसे गाजी तुम्हें ये अजीबो गरीब रूप भरने का ख्याल कैसे आता है? मुझे मजा आता है ऐसे सवांग भरने से। लोग मुझे पागल मजूद समझकर मुझसे भागते हैं और मैं अंदर ही अंदर एंजॉय करता हूँ। गाजी तुम्हें मालूम है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मौजूद मलंग टाइप बच्चे, नौजवान और बूढ़े लोग मौजूद हैं जिन्हें लोग बुजुर्ग हस्ती मानकर इनसे दुआएं कराते हैं। जानता हूँ मैं खुद भी ये काम करता हूँ। कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर किसी इलाके में चला जाता हूँ, किसी को गाली देता हूँ, किसी को जूते मारता हूँ, किसी पर पत्थर उठाकर मारता हूँ। मजजूब बनकर अपने पागलपन से लोगों को डराता हूँ। फिर ऐसे शोबदे भी दिखाता हूँ जिन्हें लोग एक मजनू की करामत समझकर इसका एहतराम करने लग जाते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हें एक बात बताऊं? कहो, मैंने कहा। हो सकता है तुम गुस्सा करो, लेकिन एक बात है, हमारे जद्दे अमजद इब्लीस ने अपने चेले चांटों को ये सबक पढ़ाया है कि लोगों का एतकाद कमजोर करने के लिए इन्हें ऐसे शोबदे दिखाया करो जिन्हें देखकर लोग करामत समझने लग जाएं और लोग, मेरा मतलब है मुसलमान, ऐसे लोगों को अपना निजात दहिंदा समझकर अल्लाह की हकीकी इबादत से दूर हो जाते हैं, शरीयत के अहकामात को नजरअंदाज कर देते हैं। भैया मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने हर मुसलमान को उसके किरदार और इसकी इबादत की वजह से माफ करना है, लेकिन हम ये समझने लग जाते हैं कि दूसरे लोग हमारी निजात का बायस होंगे। अगरचा अखलाकियात और हकूक के हवाले से हमारे अमाल दूसरों से मुंसलिक होते हैं, मगर ये अमाल नेकी पर मुश्तमिल होते हैं। हम मुसलमान नेकी के असबाब और तरीकाकार को भूल जाते हैं। जुल्म तो ये है भैया कि मुसलमान अब शैतान से भी नेकी करने लगे हैं, इस पर भी रहम खाते हैं। वो भूल जाते हैं कि नेकी के लिबास में छुपा हुआ शैतान हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। जैसा कि मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मुझ जैसे शरारती जिन्नात और शयातीन भी ऐसे करामाती रूप धार कर लोगों को गुमराह करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि वो देखें कि जिस शख्स की करामात से वो मुतासिर हो रहे हैं, क्या वो शरीयत का पाबंद है? शरीयत के दायरे अमल से बाहर निकल जाने वाला कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अलबत्ता ये मजजूब किस्म के लोग जो होशो हवा से बेगाना हों, इनका मामला मुख्तलिफ होता है। गाजी तुमने बड़े काम की बात बताई है, लेकिन क्या तुम मुझे कोई ऐसा नुक्ता बता सकते हो जिससे जिन्नात या शयातीन की पहचान हो जाए? ये बड़ा मुश्किल काम है। इन्हें पहचानने का एक तरीका तो शरीयत का आईना है जिसने हर किसी के असली चेहरे को पहचाना जा सकता है। दूसरा तरीका वज़ाइफ का है। अगर आपके पास कोई ऐसा वजीफा है जिसे आप पढ़कर उस शख्स की तरफ फूंक मार दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो शख्स खाकी है या आतशी। हम जिन्नात और शयातीन आतशी मखलूक हैं। ये नूरानी आयात इनके बदन की खाल उधेड़ देती हैं। गाजी की बात सुनकर मेरे जहन में बहुत से सवालात सर उभारने लगे। मैंने गाजी के कंधे पर हाथ रखा और हम दोनों मजार से चंद कदम दूर पत्थरों से बनी कबूर के पास जा बैठे। मैंने उससे पूछा, गाजी तुम मुझे बहुत करामत बातें बता रहे हो,
लेकिन एक सवाल मुझे तंग कर रहा है। वो क्या? उसने पूछा। सच्ची बात तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत से वज़ाइफ याद हैं, लेकिन मैंने जब भी ये वज़ाइफ पढ़े हैं मैं अपने सामने हाजिर होने वाले जिन्नात को पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, गाजी ने उलझे लहजे में सवाल किया। मसलन ये कि जब बाबा जी और आप लोगों की हाजिरी हुआ करती थी तो मैं इस शक में मुब्तला रहता था कि आप लोग शैतान हैं, हकीकी जिन्नात नहीं हो सकते। मैं दिल ही दिल में बहुत कुछ पढ़ता था, मगर आप लोग फिर भी मेरे सामने से गायब नहीं होते थे। अब तुम कह रहे हो कि वज़ाइफ की नूरानी ताकत से जिन्नात और शयातीन का असली चेहरा सामने आ जाता है और वो गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर गाजी ने कहका लगाया और फिर देर तक हंसता रहा। हंस क्यों रहे हो? बाबा, वो मैं तुम्हारी सादगी पर हंस रहा हूँ। गाजी हंसता ही चला जा रहा था। इसी असना में एक शख्स हमारे पास से गुजरने लगा तो गाजी इसी तरह कहका लगाता उसे लिपट गया। वो शख्स परेशान हो गया। गाजी ने हंसते हुए ऐसा पैंतरा बदला कि मैं हैरान होकर रह गया। वो उसके गले में बाजू डालकर झूला झूलने के अंदाज में लटक गया था और मिनमिनाते हुए गुनगुनाने लगा। तेरे मन की मुराद बाबा शाह करे पूरी, रख लाज फकीर की बाबा शाह करे पूरी। वो शख्स खासी उम्र का था। उसके चेहरे पर जुस्नो मलाल डेरे डाले नजर आ रहा था। उसने जब एक मजहूल लड़के को यूं अपने साथ लिपटे देखा और फिर उसने नारे मस्ताना को सुना तो वो इससे घबराने की बजाय खुद इससे लिपट गया। मैं मर जाऊंगा सरकार, मेरे लिए कुछ करें। वो शख्स बिलक बिलक कर रोने लग गया था। मैं हैरत से गुमसुम गाजी की इस हरकत को देख रहा था। उसने अपनी बात को सच साबित कर दिखाया था। गाजी ने कन अखियों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट तैर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कह रहा हो, देखा भैया, मैंने इसको फांस लिया है। गाजी अब उसको दिलासा देने के अंदाज में जोर जोर से पीठ पर थपकियां देने लगा। बाबा शाह तेरी मुराद पूरी करेगा, गाजी मजूल से लहजे में उससे कहने लगा। ये बात करते हुए उसका ढेर सारा लुआब दहन उस शख्स के चेहरे पर गिरा। मैंने उस वक्त कराहत से आंखें बंद कर ली। उस शख्स ने बड़ी अकीदत से सारा लुआब दहन दोनों हाथों से अपने चेहरे पर यूं मल लिया जैसे लोशन लगा रहा हो। मुझे अब कई आते आते रह गई। शाह बाबा, दम दमादम, शाह बाबा। गाजी अब लहक लहक कर धमाल के अंदाज में नाम लेता जा रहा था। वो शख्स भी दीवाना वार उसका साथ देने लगा। उस लम्हा एक ढोलची कहीं से उधर आ निकला। उसने ढोल को ऐसी थाप दी कि कुछ ही देर बाद एक पुरकैफ, वजदानी और सरफरोशाना माहौल परवान चढ़ गया। मिज़ार के नुकड़ों से कब्र के आसपास लेटे भंग के नशे में गरक मलंग और अकीदतमंद इधर आ निकले और ऐसे सरमस्त होकर धमाल डालने लगे कि मेरा अंग अंग भी ढोल की थाप पर मचलने लगा। पहले एक ढोलची, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा मैदान में उतर आया। एक तरफ धमाल डालने वाले और दूसरी तरफ ढोल को थाप के नए नए आंग देने वाले। मेरे लिए अब बैठना दोबर हो गया था। मुझे लगा जैसे ये थाप मुझे मदहोश किए जा रही है। एक सरूर है जो मेरे ज़हन पर तसल्लुत जमा रहा है। मेरे पैर मचलने लगे, पूरा बदन फड़कने लगा और फिर मैं ढोल की थाप के समुद्र में गर्क हो गया। मैं दीवाना वार धमाल डालने लगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक धमाल डालता रहा था और फिर मैं थक कर जैसे गिर गया। शायद मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंख खुली तो मेरे गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। मेरा सर गाजी की गोद में था। करीब ही वो शख्स बैठा मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। गाज, मैं गाजी को पुकारने ही लगा था कि उसने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। शाह बाबा, शाह बाबा। मुझे होश में आते देखते ही उसने खफीफ अंदाज में मुझे अपना असली नाम लेने से रोक दिया था, लेकिन उसकी हरकत से उसका ढेरों थूक मेरे चेहरे पर गिर गया और मैं यकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। अपनी कमीज के पल्लू से फौरन चेहरा साफ किया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन गाजी सरमस्त होकर शाह बाबा की गिरदान किए जा रहा था। मगर वो शख्स मेरे पास आ गया और बोला, बेटे गुस्सा ना किया करो, ये साईं बच्चा है। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि ऐसे बच्चे की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये किसी पर थूक दें तो इनके गम धुल जाते हैं। तुम गुस्सा ना करना। मुझे तो लगता है इस साईं को तुमसे कोई खास निस्बत है। मेरी कोई निस्बत नहीं है इससे। मैं नाराज होकर अपने गिर्द खड़े लोगों को देखने लगा तो उस शख्स ने मलंगों और अकीदतमंदों को वहां से जाने के लिए दरख्वास्त की। लोग तितर बितर हो गए। अब सिर्फ वो शख्स और गाजी ही मेरे पास थे। अगर तुम्हारी निस्बत नहीं है तो धमाल के बाद जब तुम गिरने लगे थे तो उसने तुम्हें नीचे क्यों नहीं गिरने दिया? उसने तुम्हें यूं उठा लिया था जैसे
नामौलूद बच्चे को उसकी माँ सीने से लगाकर चारपाई पर लेटाती है। मैं ही नहीं, सब लोगों ने यह मंजर देखा था। उसने बड़ी चाहत से तुम्हें उठाया था। खुद सोचो, ये अल्लाह वाला है, क्या तुम्हारा वजन इससे ज्यादा है? इसने बगैर किसी तरूद के तुम्हें उठा लिया था। इसका मतलब है इसके अंदर इतनी रूहानी कुव्वत है कि तुम्हें उठाते हुए इससे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। जिस अंदाज में तुम गिरने लगे थे, तुम्हें चोट लग सकती थी, मगर अल्लाह के इस साईं ने तुम्हारा बाल बीका नहीं होने दिया। आप कौन हैं? वो खामोश हुआ तो मैंने दरियाफ्त किया। गाजी अब उठकर उस कब्र के पास जा बैठा था जहाँ कुछ देर पहले हम बातें कर रहे थे। मैं तो इस मज़ार पर आता रहता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ बरसों से इधर आता हूँ और सुकून भर कर ले जाता हूँ। उसने अकीदत से मज़ार के गुंबद पर रोशन रंगीन ट्यूब लाइट्स की तरफ देखा और फिर हसरत भरे लहजे में बोला, सुकून तो मिल जाता है, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हो रही। मेरे दुखों की चादर अभी तक मैली है, ये नहीं धुलेगी। असल मुराद पूरी नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? बेटे, मेरा नाम असगर शेख है। मैं एक मौल्लिम हूँ, यहाँ कॉलेज में उर्दू पढ़ाता हूँ। बेटा, एक वक्त था जब मैं मज़ारों पर नहीं आता था, फिर मुझे एक बुजुर्ग मिले, वो भी इस साहिब मज़ार के अकीदतमंद थे। इनकी विसाल के बाद मैं भी यहाँ आने लगा। इनके साथ आता था तो यहाँ बुजुर्गों की करामात सुनता, नजर न्याज करता। मेरी औलाद नहीं होती थी। 5 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी दी। मैंने मन्नत यहाँ चढ़ाई। अब 10 साल हो गए हैं। उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। मेरे दिल में औलाद नरीना की ख्वाहिश जड़ पकड़ चुकी है। मैं हर जुमेरात को खास तौर पर यहाँ आता हूँ और जो भी अल्लाह वाला मिलता है इसे दुआ कराता हूँ। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि अब मेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। अजीज रिश्तेदारों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो। मैंने 2 साल पहले दूसरी शादी की थी, लेकिन उससे भी औलाद नहीं हुई। अब एहसास जुर्म भी रहता है कि मैंने पहली बीवी की बेकदरी की और औलाद नरीना के लिए दूसरी बीवी कर ली, लेकिन हरी भरी शाख अभी भी सूखी है। मैं अब इस उम्मीद पर दिए जलाता हूँ कि एक दिन मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। असगर शेख के लहजे में उम्मीद भी थी और एहसासी जुर्म भी। दोनों हाथ थाम कर बोला, बेटे, अगर तुम्हारा इस साईं से कोई ताल्लुक वास्ता है तो इसे कहो मेरे लिए दुआ करे। मोहतरम, मैं इस साईं को नहीं जानता। मैंने जानबूझकर झूठ बोला और कहा, मैं भी आपकी तरह अकीदतमंद हूँ। मैं इधर बैठा हुआ था कि ये बच्चा भी इधर आ गया। तुम्हें मालूम है, इस साहिब मज़ार की करामात और तसव्वुफ में पहुँच का ये आलम है कि जिन्नात भी इनके मज़ार पर हाजिरी देते और जारूब कशी करते हैं। इनकी खिदमतगारों में भी जिन्नात हुआ करते थे। साहिब मज़ार जब दरसे तसव्वुफ देते थे तो जिन्नात किताब बांध कर खड़े रहते थे। क्या आपने साहिब मज़ार को देखा है? मैंने पूछा। नहीं बेटे, वो तो 1 सदी पहले विसाल फरमा गए थे। मुझे ये बातें मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे। असगर शेख निहायत अदब से कहने लगे, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। मेरे बुजुर्ग दोस्त आगा हामिदी खुद भी साहिब करामत थे, तहज्जुद और शब गुजार थे। शरीयत के पाबंद ऐसे वलीउल्लाह थे कि हर वक्त उनके चेहरे पर बशाशत का नूर चमकता नजर आता, जो दूध सखा के मालिक थे। इस दौरान गाजी दोबारा बाबा शाह की गिरदां करने लगा। मैं और असगर शेख उसके पास चले गए। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैंने गाजी से कहा, बाबा शाह, ये हमारे उस्ताद हैं, इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इन्हें बेटा अता करे। गाजी ने मज़्ज़ूबाना नजरों से असगर शेख को देखा, फिर एक शान से सर हिलाकर बोला, जा जा, वो देगा। असगर शेख ये सुनकर खुशी से पागल हो गया। आगे बढ़ा और वालिहाना अंदाज में गाजी के मैले कुचले हाथों पर बोसे देने लगा। गाजी ने उसकी पीठ थपथपाई और एक बार फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। अब जा, दफा दूर हो जा। गाजी ने एक तरह से उसे धत्कार कर उठाया। असगर शेख बड़ा खुश था। यूं लग रहा था जैसे इसे कारून का खजाना मिल गया हो। हाँ भैया, अब सुनाओ। देखा, एक प्रोफेसर भी शरअ और शरीयत को भूल गया। तुम एक आम सीधे साधे मुसलमान को क्या कहोगे? गाजी, इसमें इस बेचारे का ज्यादा कसूर नहीं है। तुमने बहरूप भरकर इसे उकसाया। मैंने उकसाया? अरे भैया, ये लोग तो उकसने पर हर वक्त तैयार होते हैं। इंसान की मजबूरियां, ख्वाहिशें, बेकरारियां और मायूसियां उसको कब्रों पर माथा टेकने पर मजबूर कर देती हैं।
غازی بولا، یہ تو اندھیروں کے مارے لوگ ہیں، جہاں روشنی ملے گی یہ اس سیراب کی طرف چل دیں گے۔ تم انہیں روشن بن کر اپنی طرف نہ بلایا کرو، وہ ذات جو مشعل راہ ہے انہیں اس کی طرف جھکنا چاہیے۔ ہاں، بزرگوں کی مغفرت اور ان کی دعاؤں کے لیے حاضریاں ہو جائیں تو غلط نہیں۔ یہ کہتے کہتے مجھے ایک گھن آلود خیال آ گیا، کم بخت تو نے میرے چہرے پر بھی تھوک دیا تھا۔ یہ سن کر غازی ایک بار پھر ہنسنے لگا اور بولا، بھیا میں مجذوب جو ٹھہرا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو باز آجا غازی، تیری انہی شرارتوں کی وجہ سے یہاں کے بزرگ خفا ہیں۔ میں نے اسے بتایا، سرکار تیلے شاہ اس وقت مزار کے اندر عبادات میں مصروف ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن آج وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آج جنات اپنے بزرگوں کے ساتھ یہاں حاضری دے رہے ہیں۔ ان کی بیبیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ کن کی بیبیاں؟ میں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ جنات کی، ہماری بیبیاں، وہ بولا۔ یعنی جن زادیاں؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، البتہ ایک دو بزرگ جن زادیاں ملنگنیوں کے روپ میں ہوں گی۔